Good morning. That's some enthusiasm for somebody who does not like the stage. Okay. To all those who know Smart, you all know me, but I can see a lot of new faces and I'm very happy. I'd like to welcome all of them. A very, very warm, bright, excited, enthusiastic good morning to all of you. मेरा नाम सिंधु नायर है. मैं स्मार्ट की co-founder हूँ. I also happen to be the best half of Santosh, and I want to maintain and stress and emphasize on the fact that it is the best half because मेरा यकीन है कि और कोई best हो नहीं सकता. That's very encouraging. You all have to encourage me. Let me tell you something about Smart. We've completed 19 years. We are in the business of providing path-breaking solutions to entrepreneurs, working exclusively for entrepreneurs. This is the 20th year. We have done that. In the beginning of the year, we did a great amount of work with all the corporates, all the MNCs. You name the company, we must have trained somebody somewhere in whatever level you can think of. In the last 15 years, we've been working with entrepreneurs. We've done a lot of work in enterprises. We are again coming back into enterprise transformation. So coaching karna, training karna, employees ka training karna, projects lena companies mein, processes likhna, we do all that. I had seen a very small boy sitting there. I can't see him now. Oh yeah, I'm very impressed and I'm very inspired by him. How old is he? Oh my God, that's motivation for us. A 10-year-old guy. Good morning. और vacation के दिन में बाप उठा के उसको यहाँ पे लेके आता है. I don't know what the father must have told him, but that's really encouraging. And for the people who are eagerly waiting for today's program, let me call on stage a new entry into Smart, the person who does the content, helping Kajal, working very closely with Mr. Nair, Mr. Pramod Prasad. Good morning everyone. My name is Pramod and once again on the behalf of Smart I would like to welcome you for the session on capability multiplication. So इससे पहले कि ये प्रोग्राम अपने फुल फ्लो में स्टार्ट हो और आप उन्हें सुने जिन्हें सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं, I would like to present some of my views on this capability multiplication subject. So ये capability क्या है, ये capable कौन है? तो ये capability हम हर किसी के अंदर होती है. मैं भी capable हूँ, आप भी capable हैं, इस दुनिया का हर इंसान capable है. तो फिर हम ये कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका एक कारण ये है हमारा नजरिया. हमारा नजरिया ये है कि दुनिया में हर इंसान तो कैपेबल है, बट उसको एक रिसोर्स के रूप में देखने के बजाय इंस्टेड ऑफ लुकिंग देम एज ए रिसोर्स, वी आर लुकिंग देम एज ए कंपटीशन. हम लोगों से कटते जा रहे हैं. हमारी टेक्नोलॉजीज हमें लोगों से आइसोलेट कर रही है. हम अपने गैजेट्स की दुनिया में व्यस्त हैं और हम ये जानना नहीं चाह रहे कि हमारे सामने का इंसान कितना कैपेबल है, हम उससे क्या सीख सकते हैं. हम स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं. किसी को बिना जाने बिना ही उसके बारे में राय बना लेना, ये स्टीरियोटाइपिंग है और ये स्टीरियोटाइपिंग बिल्कुल गलत है. बट न सिर्फ हम ये स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं बल्कि अपने आने वाली जनरेशन को भी सिखा रहे हैं. मैं हमेशा कहता हूं कि अपने वर्क प्लेस पे हम लोगों को कैसे देखते हैं. वर्क प्लेस पे लोग रिसोर्सेज होते हैं बट उन्हें हम कंपटीशन समझते हैं. हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर भी एक लिमिटेशंस है और उन लिमिटेशंस को अपने बगल में बैठे इंसान से, अपने वर्क प्लेस के कलीग से की कैपेबिलिटी से मिला के हम उस लिमिटेशंस को कम कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं. और साथ ही साथ वो इंसान भी अपनी लिमिटेशंस को हमारी कैपेबिलिटी से कम करके अपनी कैपेबिलिटीज को, लिमिटेशंस को कम करके अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है. और इस पूरे प्रोसेस में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा सकते हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. हम अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इस प्रोसेस में ना हम आगे बढ़ रहे हैं, ना हमारा कलीग आगे बढ़ रहा है और ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है. मैं हमेशा कहता हूं कि एक बात है कि इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे गांधीवादी हैं. बहुत से लोग गांधी जी के साथ बहुत लोगों ने काम भी किया है, बट कोई भी महात्मा गांधी क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उनमें कला थी सबको साथ लेके चलने की, जिसे सीखना बहुत कठिन है. तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज है कि एक दिन ये दुनिया टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, टेक्नोलॉजी की स्लेवरी की ओर बढ़ जाएगी और धीरे धीरे ये ऑटोमेशन है वो लोगों के एफर्ट्स को कम करेगा, लोगों की जॉब्स को कम करेगा. बट उस कंडीशन में भी दो चीजों को टेक्नोलॉजी नहीं छू पाएगी, दैट इज क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग एबिलिटी. क्योंकि इसको हम किसी गूगल या सोशल मीडिया से नहीं सीखते हैं, इसे हम लोगों से ज्ञान हासिल करके, अपना ज्ञान बढ़ा के, अपने अंदर एक्सप्लोर करके सीखते हैं.
सो कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है लोगों से मिलना, उनसे ज्ञान हासिल करके अपना ज्ञान बढ़ाना, यूनिटी रखना और अपनी कैपेबिलिटीज को उस वे में मल्टीप्लाई करना। अब मैं बहुत ही जल्दी एक दूसरे पहलू की ओर जाना चाहूंगा, दैट इज कहानियां। कहानियां हम सभी को पसंद आती है, बट वो कहानियां जिनमें मसाला हो। हम वो मूवीज देखना पसंद करते हैं जिसमें ट्विस्ट हो, थ्रिल हो, हीरो थोड़ा गिरे, थोड़ा मार खाए, अंत में मारे और अंत में जीते। हम महान लोगों की स्टोरीज सुनते हैं और उनकी कहानियां अपने बच्चों को सुनाते हैं कि देखो उसने लाइफ में ये सब कुछ झेला, वो कितना बड़ा बना, तुम्हें भी ऐसा बनना है। लेकिन जब हम पे ये दिक्कतें आती है तो हम बोलते हैं नहीं, हम इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे, अपनी स्टेट ऑफ इनर्शिया में ही रहेंगे, हमें नहीं बदलना। और हम ये भूल जाते हैं कि वो जो रास्ता पेन का है, तकलीफ का है, दर्द का है, वही रास्ता कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन का है। बट हम उन पेन से डरते हैं, उस रिएक्शन से डरते हैं, उस जर्नी से डरते हैं और उस रास्ते पे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। अब कैपेबिलिटीज तो हमने बढ़ाई नहीं, तो हम क्या ढूंढेंगे? एक्सक्यूजेस बाजार में, दुनिया में थोक के भाव से मिलते हैं और थोक के भाव से चलते भी हैं। हमारे जैसे लोग जो अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। लोग बोलेंगे कि वाह वाह, तुम ये काम कठिन तो था ही, तुमने नहीं किया, मुझसे भी नहीं हो सकता था। वो कर देता है यार, उसके पास तो इंटेलिजेंस है, उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो गॉड गिफ्टेड है, हम भी नहीं कर सकते। और धीरे धीरे क्या होगा, हम अपने बहानों के वर्ल्ड में बैठे रहेंगे। दुनिया तो कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन करेगी ही, क्योंकि दुनिया सीख रही है, तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी और हम अपने बहानों के साथ वहीं पे खड़े रहेंगे। तो धीरे धीरे एक ही काम को एक ही तरीके से करते करते रहने से हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम फिजिकली थकते हैं, बल्कि इसीलिए कि हम मेंटली एजिंग, मानसिक बुढ़ापे की ओर बढ़ते जाते हैं, जो इरिवर्सिबल है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें लोगों से मिलना बहुत जरूरी है और अपनी उस दुख और तकलीफ की उस मंजिल की राह पे चलना जरूरी है, जिसमें शुरू में तो आपको तकलीफें दिखेंगी, पर आपको अपनी मंजिल भी धीरे धीरे साफ दिखने लगेगी। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज आपका यहां आने का डिसीजन बिल्कुल सही है। इसलिए सही नहीं है कि जिनसे आप ये सब कुछ सुनना और सीखना चाह रहे हैं वो एक महान स्पीकर है, क्योंकि महानता आज एक बहुत कॉमन गुण हो गई है। मैं कहना चाहूंगा उनमें स्पेशल बात यह है कि वो बहुत मेहनती और ईमानदार स्पीकर हैं, और ये दोनों क्वालिटीज बहुत रेयर होती हैं। मेरा उनसे बहुत संक्षिप्त परिचय रहा है, आप लोग मुझे उनसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जहां तक मैं उनको जान पाया हूं, किसी भी आइडिया को लिसनर्स तक प्रेजेंट करने से पहले वो उसको अपने जीवन में उतार के देखते हैं कि ये कन्विंसिंग है या नहीं, और वो ये काम कुछ 34-35 ईयर्स से कंटिन्यूअसली बिना थके करते आ रहे हैं। जैसा हम लोग कहते हैं कि मैं फिर से महात्मा गांधी को लाना चाहूंगा कि उनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ही एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग ऑन हिज लाइफ एंड नेवर प्रीच्ड। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, हर चीज को जीवन में उतारा। तो मैं उनमें भी ये एबिलिटी देखता हूं कि पहले वो खुद कन्विंस होते हैं, बिना अपने कस्टमर्स को, अपने लिसनर्स को पहुंचाने से पहले। तो इससे पहले मैं उनको यहां बुलाऊं, मैं कुछ अपने अंदाजे बयां में उनका इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा और उनको यहां पे आपके सामने आमंत्रित करना चाहूंगा। तो थोड़ा मुलाहिजा फरमाइएगा कि कैपेबिलिटी ही वो ईंधन है जिससे धधकता है जिंदगी का फायर। कैपेबिलिटीज ही वो ईंधन है जिससे धधकता है जिंदगी का फायर। कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन करके आप अपनी लाइफ को ऐसा बना लेंगे कि आपसे सीखने आएंगे कवि और शायर। कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन आपको बनाएगा साहसी, आप नहीं रह जाएंगे कायर। कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन मजबूत कर देगा आपकी जिंदगी की गाड़ी का हर टायर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आ रहे हैं टाइगर संतोष नायर। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा करने के बारे में सोचा और तुम पैदा भी हुए, और हर आदमी जो यहां बैठा है ना, बराबर 9 महीने में पैदा हुआ। किसी को 18 नहीं लगा, किसी को 21 नहीं लगा, किसी को 25 महीना नहीं लगा, किसी को 40 महीना नहीं लगा, कोई आया ही नहीं बाहर, ऐसा हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो ग्रोथ है ना, सबका ग्रोथ उस 9 महीने में बराबर हुआ। मतलब हाथ पैर भी बराबर बने, पैर बने, आंख बने, नाक बने, सब कुछ बना वो 9 महीने में। इसका मतलब है कि मेरा ये समझ है कि हम लोग सब लोग अंदर जो थे ना, जब माँ के कोख में थे, तो बराबर हम लोग 9 महीने में पैदा हुए, क्योंकि वातावरण वो जो माँ का कोख में था वो कैपेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन का वातावरण था। माँ ने वो एनवायरनमेंट बनाया और माँ और बाप ने मिलके एक संभोग किया और उसके अंदर आप आए और आप बराबर 9 महीने में पैदा हुआ।
लेकिन बाहर आने के बाद सब चीज आगे पीछे हो गया। मतलब किसी का पब्लिक स्पीकिंग को 20 साल भी लग गए लेकिन डेवलप नहीं हुआ, और किसी ने पब्लिक स्पीकिंग 20 महीने में सीख लिया। किसी ने लीडरशिप 10 साल में नहीं सीखा और किसी ने लीडरशिप 1 साल में सीख लिया। इसका मतलब है कि आदमी जब अंदर था, मां के कोख में था, वो वातावरण ऐसा था कि बराबर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे ही आदमी मां के कोख के बाहर आया, वो चीज उसके हाथ में आया। कैपेबिलिटी बिल्ड करना या न बिल्ड करना उसके हाथ में आया। जब तक वो एक एनवायरमेंट में था अंदर मां के कोख में, वो आपे आप ग्रो हो रहा था। वो मां ने वो एनवायरमेंट क्रिएट किया और तुम ग्रो हो रहे थे। एंड इट वाज सो सिंपल दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर बोर्न इन 9 months. Nobody took about 25 months or 30 months or 60 months to be born, which clearly indicates कि एक बार मां के कोख से बाहर आ गया तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग तुम्हारी पर्सनल जिम्मेदारी हो जाती है। और कहीं ना कहीं इंसान उस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब चूकता है, तो जैसे प्रमोद ने कहा, उसको बहानों की जरूरत पड़ती है। उसे जीएसटी का बहाना लेना ही पड़ता है, नोटबंदी का बहाना लेना ही पड़ता है। उसे ये बोलना ही पड़ता है कि मेरे पास क्वालिटी आदमी नहीं है, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, मेरे पास वो लोग नहीं है, मेरे उधर मेरे को लोग मिल नहीं रहे हैं, ये हमारा जो धंधा है वो अलग है। वो ऐसे ऐसे बहाने ढूंढ लेता है और भूल जाता है कि कैपेबिलिटी के वजह से ही ये सब कुछ नहीं हो रहा है, और उसके ऊपर उसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना पड़ेगा। एंड इफ दैट बी द केस, वेलकम टू कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर, द सीक्रेट्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। मेरा हमेशा ये मानना है कि मेरा क्वेश्चन हमेशा ये है, आर यू एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल? इसका मतलब है कि आप 10 आदमी को रिक्रूट करना चाहते हो 20 दिन में, क्या आप वो कर पा रहे हो? आप सेल्स में हैं, आप फील्ड में जा रहे हैं और आपको रिजल्ट चाहिए, आपको वो सेल चाहिए, आपको वो एडवांस कलेक्शन चाहिए। क्या आपको वो एडवांस कलेक्शन मिल रहा है कि नहीं? हर इंसान जो यहां बैठा है, आर यू एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। एंड इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एट विल, वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। वो रिजल्ट टाइम पे पहुंचने का रिजल्ट हो सकता है कि मैं हर जगह पे पिछले 35 साल में 1 से 1.5 घंटा पहुंचा। इसका मतलब है कि आई हैव बीन इन अ पोजीशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। का मतलब है आई कैन रीच ऑन टाइम फॉर द लास्ट 35 years, एंड आई कैन प्रॉमिस यू आई हैव गॉट अनदर 70 years लेफ्ट, एंड इन दिस 70 years आई विल रीच ऑन टाइम बिकॉज आई बिल्ड दैट कैपेबिलिटी। अब टाइम पे पहुंचना रिजल्ट पैदा हो सकता है, आपको 0 डिफेक्ट प्रोडक्शन करना है, वो एक कैपेबिलिटी है, वो एक रिजल्ट है जो आप पैदा करना चाहते हैं। क्या आप वो पैदा कर पा रहे हैं एट विल? एट विल। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आर यू रेडी? आर यू एबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल? जब भी मैं फील्ड में गया मुझे सेल मिला, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी 35 साल पहले अपना करियर को एज ए सेल्स पर्सन इन यूरेका फोर्ब्स, मेरे को 50 आदमी के पास जाना पड़ता था, तब जाके मेरे को एक सेल मिलता था। फिर मेरे को समझ में आया कि मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, बोल के वो हुआ नहीं। एंड देयरफॉर जब मैंने अपने लाइफ को डेडिकेट कर दिया कि मैं इस कैपेबिलिटी को बना के रहूंगा, तब से लेके आज तक 34 साल में, आउट ऑफ द 35 years में, 34 years में आई कुड प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। जब मेरे को एडवांस चाहिए तो मैं एडवांस उठाता हूं, जब मेरे को वक्त पे पहुंचना है तो पहुंचता हूं, जब मेरे को दुखी रहना है तो दुखी रहता हूं, जब मेरे को सुखी रहना तो सुखी। दैट मीन्स आई कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। जब भी मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, शाम तक मैं मार्केट में जाता था और मेरे को 10 लाख उठाने में आज तक तकलीफ नहीं आई। लेकिन ये मैं हर आदमी के बारे में नहीं बोल सकता हूं जो मेरे इर्द गिर्द में घूमते हैं, मेरे कंपनी में और दुनिया में हर आदमी रिजल्ट पैदा कर पा रहा है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। दूसरा क्वेश्चन इज देयर अ कांस्टेंट गैप बिटवीन आवर गोल एंड आवर अचीवमेंट? हम हमेशा गोल सेट कर रहे हैं कि मुझे 10 करना है
और मैं लैंड अप हो रहा हूं 5 पे। मेरा आदमी सेट करता गोल, मुझे 10 पे जाना है और वो 3 पे सेटअप हो रहा है। ये चिंता का विषय है, ये सोच की विषय है कि क्यों हमारा गोल और हमारा अचीवमेंट में कंटिन्यूस गैप है। अगला क्वेश्चन, आर वी जस्टिफाइंग, शेमिंग एंड ब्लेमिंग द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस फॉर आवर नॉन परफॉर्मेंस? आदमी जस्टिफाई करता है, सर वो अपना प्रोडक्ट में ना थोड़ा डिफेक्ट था, बोल के वो सेल नहीं हुआ। हमें याद है हम लोग यूरेका फोर्ब्स में यूरोक्लीन वैक्यूम क्लीनर बेचते थे मोटर के बिना, और कस्टमर को बोलते सर अभी ये पीस रखो मोटर आएगा, और हम चेक उठाते थे। पेपर बैग नहीं होता था, जो 20 पेपर बैग रहता है एक वैक्यूम क्लीनर के अंदर, पेपर बैग के बिना उसका जो होस पाइप है उसके बिना बेच देते थे। बट हम जस्टिफाई नहीं करते थे कि धंधा क्यों नहीं हुआ। तो क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं? कई बार मैं ही गधा हूं, मुझ में एबिलिटी, शेम का मतलब है मैं ही गधा हूं, मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं ही गधा हूं, मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मैं वो कर नहीं पा रहा हूं। क्या आप अपने आप को शेम कर रहे हैं? क्या आप हर चीज को ब्लेम कर रहे हैं आजू बाजू में? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए आज कि आर वी जस्टिफाइंग, शेमिंग एंड ब्लेमिंग फॉर आवर नॉन परफॉर्मेंस? और क्या ये आदत हो चुकी है और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि ये बोल देना कि मुझे क्वालिटी आदमी मिलता नहीं है। कभी इस पे रिसर्च हमने किया? मेरे आदमी टिकते नहीं है, तो कभी इस पे रिसर्च हुआ? मेरे को पैसा एडवांस में नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? Are we behaving physically and mentally, emotionally challenged without actually being challenged? क्योंकि बहुत सारे फिजिकली डिसेबल्ड आदमी लोगों को लड़ते हुए और रिजल्ट पैदा करते हुए मैं देख रहा हूं। स्टीफन हॉकिन, हेलन केलर, दुनिया में ब्लाइंड लोग जिसके हाथ पैर नहीं है, क्या हो लड़की का नाम है जो माउंटेन पे चढ़ती है, अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर कट गए, मतलब उसको ट्रेन से फेंक दिया गया, पैर उसका कट गया, उसके बाद माउंट एवरेस्ट गई, और टुडे शी इज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी विद पद्मश्री इन हर दिस थिंग। और तुम्हारे साले पैर सलामत, हाथ सलामत, आंखें सलामत, तेरी बीवी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, और रोने का तूने ठेका लेके रखा है। नहीं तो अगर तू परफॉर्म पैर कटने के बाद ही करने वाला है तो मैं बंदोबस्त करता हूं ना उसका, तो मैं बंदोबस्त करता हूं, तेरे हाथ पैर काट के तेरे बहुत सारे, तेरे को एक्चुअली अपाइज बना देता हूं, फिर तू लड़ेगा। अगर यही है तो मैं तेरे को अपाइज बना के देता हूं, अपना कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी है। Are we unknowingly surrounded ourselves with a group of people who are not value adding to us, thus running out of creative solutions? क्या हमने अनजाने में अपने इर्द गिर्द में ऐसे आदमी लोग को भर के रखा है जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है और हम उसके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे? तो दो निकम्मे लोग क्या साथ में काम कर रहे हैं? Are we unknowingly lost our intelligence and wisdom because of social media? मैं बर्फी वाला स्कूल में पढ़ता था और हमारा बर्फी वाला स्कूल में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। कल 11 लोगों ने उस 50 में से अपना उंगली का फोटो निकाल के भेजा। किधर डालने का है? मतलब बुद्धि ही नहीं रही। तेरा उंगली का फोटो देख के मैं क्या करूं? अभी जो भेज रहा है उसको ही अक्ल नहीं है, तेरा टोटल पर्सनैलिटी की वैल्यू नहीं है, इसका क्या है? फिर भी तू भेज रहा है। अन्नाड़ी, बेवकूफ,
वक्त बर्बाद कर रहा है। उसी टाइम में, जिस टाइम में तूने अपने उंगली का फोटो निकालने में और उसको साले ग्रुप में डालने के जगह पे एक जो तेरा फील्ड है, अगर वो फील्ड सर्विस का है तो सर्विस का कोई रॉन कॉफमैन का सीडी का 15 मिनट देख लेता तो तेरी सर्विस एक्सेलेंस की कैपेसिटी बढ़ जाती। उसी टाइम में, जिस टाइम में तू अपने आप को सोशल मीडिया में बना के रखा हुआ है, I have voted. So what the fuck? Why are you trying to make the world know? What's this great thing? तो हम लोगों ने क्या हमारा इंटेलिजेंस और विजडम को सोशल मीडिया के सामने सरेंडर कर दिया? क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वर्ल्ड को देने के लिए उंगली के सिवाय? क्या हम लोग हर 5-5 सेकंड में मोबाइल को उठा के देख रहे हैं कि मैसेज आया कि नहीं, और घबराहट होती है कि 10 सेकंड हो गया कि कोई कुत्ते ने मैसेज नहीं भेजा अभी तक, तो मैं ही भेज देती हूं या मैं ही भेज देता हूं। और दुनिया का हर आदमी तुमको फालतू जोक्स, ये वो, राहुल गांधी के बारे में, इसके बारे में भेज रहे हो, और तुम गधे उसको बैठ के पढ़ भी रहे हो और तुम उसको आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ये कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको मैंने कुछ नहीं बोला। Are you therefore overwhelmed with social media? Is your past becoming clear to you on a daily basis? क्योंकि मेरा ये मानना है, when I go into 2020, I should know why 2019 was a great year or a bad year. और आज की तारीख में अगर मैं एक सेल्स का बंदा हूं और मैं घर जा रहा हूं और पिछले 1 महीने में मैंने एक भी सेल नहीं किया, तो क्या मैं समझ पा रहा हूं मेरा पास्ट को कि मैं रिजल्ट क्यों नहीं पैदा किया? अगर मेरे आदमी पिछले 1 साल में 10 आए और 10 छोड़ के गए, तो क्या मैं ये सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि पास्ट में 10 आदमी को लाया, 10 का 10 महीने में छोड़ के क्यों गया? इसकी समझ आ रही है कि और 1 साल चला जाएगा और 10 आएंगे और 10 चले जाएंगे, लेकिन तेरी समझ तेरी पास्ट का 0 है। इसका मतलब है कि तू अपने पास्ट को लगातार रिपीट करता रहेगा। Because if you're not understanding why results have been produced in the past or have not been produced, या तो प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों की समझ अगर आपकी रोज नहीं बढ़ रही है, आपकी पास्ट में अच्छा बुरा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ ये अगर बढ़ नहीं रही है, तो there is a problem. Are you very excited and absolutely clear and in awe and in absolute ecstasy of the future? क्या आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आपको विश्वास है कि आपका 2020 पिछले 30 साल से बहुत ही बढ़िया होने वाला है? क्या आपका 2025 is going to be better than 2015? Can you guarantee yourself? Or are you going to say it will depend upon who will come as the party in parliament and what will be the bloody policies of that government? उसके ऊपर तेरा 2025 डिपेंड होगा? Are you able to provide direction, confidence and know-how in every conversation? हर कॉन्वर्जेशन में, भले एक एज अ फादर तुम अपने बेटी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, तो क्या तुम 3 चीजें उसे उस कॉन्वर्जेशन में दे पा रहे हो? 1 इज डायरेक्शन, 2 इज कॉन्फिडेंस, 3 इज नो हाउ। हर कॉन्वर्जेशन में, हर कम्युनिकेशन में, वेदर वो सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन होवे, व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन होवे, मैसेज का कम्युनिकेशन होवे, मेल का कम्युनिकेशन होवे, 1 to 1 होवे, पार्टी में बैठे खड़े हैं, जू बीच में है, जहां पर भी आप है, क्या आपका हर कॉन्वर्जेशन में लोगों को डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस और नो हाउ मिल रहा है? कि अगर लोग नहीं मिलते तुम्हारे साथ और वो 1 घंटा नहीं बिताते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्या तुम्हारा सबॉर्डिनेट, कलीग, बेटी, बेटा, वाइफ, हस्बैंड, मां, बाप, दुनिया को लग रहा है?
एंड इसीलिए शायद a lot of people are depressed, out of control, and sometimes, not only sometimes, but most of the time, 1 in every 3 person today is depressed. Medical reports and analysis of people are showing that 1 in every 3rd person is depressed. बिकॉज वो लड़ नहीं पा रहा है ये सिचुएशन को, और वो हमेशा अंदर से टूटता जा रहा है कि मुझसे ये हैंडल नहीं होता. एंड बिकॉज कुछ तो कमी है जिसकी वजह से लगातार हर चीज को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. हर चीज को पोस्टपोन कर रहे हैं और हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. तो मेरा ये मुद्दा है, आर वी पोस्टपोनिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज? एंड इससे बचना तो है. मैं अपना दुख नहीं बचा सुख ये कर पा रहा हूं. सबसे ज्यादा ड्रग्स आज की तारीख में डिप्रेशन के बॉडी पेन किलर्स बिक रहे हैं. ऑल टाइप्स ऑफ पेन. हर आदमी को कभी बैक का पेन है, गले का पेन है, ऑल टाइप्स. एंड 21, 22, 23-year-old people, boys and girls, have so much of pain in their body. Are you finding an escape by excessively resorting to drugs? Whatever those drugs are, painkillers or whatever. जापान में सबसे ज्यादा आज पेन किलर्स और एंटी डिप्रेसेंट्स बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा. एंड द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है वो. आर वी नोइंगली और अननोइंगली सरेंडरिंग टू द EMI कल्चर? कई लोग तो ऐसे हो गए. मेरे पास इंटरव्यू, सिंधु हमेशा बोलती है, आज इंटरव्यू में एक लड़का आया, बोले मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए. क्यों? बोले मेरा 50 चाहिए, मेरा EMI 30,000 रुपीज. तो मेरे को है ना, आप 10 लाख की जगह पे 12 लाख रुपया दो, बिकॉज मेरे को अभी आई वांट टू फिनिश ऑफ माय EMI. हर आदमी EMI के कल्चर में फंस गया है. इसका मतलब है कि वो ये बोल रहा है कि मैं अपने ताकत पे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी तो नहीं कर सकता हूं, मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI और दुनिया का कोई ना कोई आदमी फंड करेगा, तब जाके मैं घर लूंगा, कार लूंगा. अपने ताकत पे क्यों नहीं? क्यों हमेशा EMI? और जितना EMI में घुस रहे हो उतना तुम्हारी क्रिएटिव शक्तियां टू प्रोड्यूस वेल्थ खत्म हो रही है. नहीं, आई डोंट नो. और अंत में, आर यू लिविंग वेरी कॉन्शियसली और इज जिंदगी गोइंग ऑन एक्सीडेंटली? आर यू कॉन्शियस about your past? Are you conscious about your future? Are you conscious about whether you're producing results or not producing results? Are you conscious? और धुंधकी में है, नशे में है. One day to another day is just passing by. Are you living consciously or accidentally? Because जो accidentally जी रहे हैं वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे और वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे जो वहां वो पहुंचना. और हर आदमी का गोल बड़ा बड़ा है. हर आदमी का गोल बड़ा है. अगर उसके पास होंडा सिटी है तो वो अगला बोलता होंडा अकॉर्ड लेना है. अगर वो 2 बेडरूम में रहता है तो उसका सपना 4 बेडरूम का है. लेकिन वो ये सोच रहा है कि 4 बेडरूम का लूंगा और EMI में लूंगा. इसका मतलब है बिटवीन द 2 बेडरूम एंड 4 बेडरूम वो C का क्या हुआ? बिटवीन द 2 बेडरूम एंड 4 बेडरूम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही तेरे को फंड करने वाला है तो संतोष नायर की अदालत पे तेरे पे इल्जाम है कि तू उस 2 बेडरूम और 4 बेडरूम के बीच में सेमी है और तेरे में नया कोई सी जवाब डेवलप हुआ ही नहीं. C therefore is capability. All this is happening. जो भी मैंने 15 क्वेश्चन उठाए, ऐसे तो मैं और 50 लिख सकता था, लेकिन ये सब मुद्दा C का है. सब मुद्दा C का है. C means results. अगर C है तो रिजल्ट यू कैन प्रोड्यूस एट विल. जब चाहिए
अच्छा तुमको 2 बेडरूम से 4 बेडरूम में जाना, तुम तुम्हारे ताकत पे एडवांस पैसा लेके ईएमआई किए बिना, किसी से पैसा लिए बिना तुम उसका फंडिंग कर सकते हो. दैट इज सी. दैट इज सी. कि तुमने आदमी को रिक्रूट किया और उसको रातों रात प्रोडक्टिव बनाया. दैट इज सी. और सी का मतलब है यू रिक्रूटेड द राइट पीपल. सी के वजह से ही तूने राइट पीपल रिक्रूट किया. इसका मतलब है रिक्रूटमेंट का सी अगर तेरे को आता है तो तू रिक्रूटमेंट सही आदमी का करेगा. और रिक्रूट किया हुआ आदमी को एब्जॉर्ब करने का अगर तेरे में सी है तो तू उसको एब्जॉर्ब इनटू द कल्चर बराबर करेगा. और अगर तेरे में वो रिक्रूटेड और एब्जॉर्ब आदमी को डेवलप करने की तेरे में सी है तो तू उसको डेवलप बराबर करेगा. और अगर तू वो डेवलप्ड आदमी को डिप्लॉय करने का कैसा उसका अगर सी है तो तू उसको डिप्लॉय करेगा. और उसका परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने का अगर तेरे में सी है तो तू उसका परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करेगा. और अगर उसका रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन करने का कैसे उसका अगर सी है तो तू उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन बराबर टाइम पे देगा. और अगर उसको एंगेज करके रखना है और 10 साल तो उसको एंगेज करने का कैसा उसका अगर सी है तेरे पास तो तू उसको एंगेज करके रखेगा. एंड अगर तेरे को उसको रिटेन करने की ताकत है तो उसको रिटेन कर सकेगा अगर तेरे पास रिटेंशन की सी है. इसका मतलब है सी इज रिजल्ट्स. C means you can provide direction to people. C means that you can give confidence to people. C means you can give know-how, provide know-how to people. कैसे करने का ये बता सकते हो तुम. मेरे कंपनी में एक रिव्यूअर काम करता है. समझो हमारे पास 25 रिव्यूअर है जो हमारा गुरुकुल प्रोग्राम के बाद रिव्यू के लिए कस्टमर के पास जाता है. और वो अगर रिव्यूअर फोन करता है और कस्टमर उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, इसका मतलब है अपॉइंटमेंट लेने का रिजल्ट वो पैदा नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब है सी का प्रॉब्लम है. और अगर वो कस्टमर उसको मिलना नहीं चाहता है तो वो सी का प्रॉब्लम है. कस्टमर आगे से फोन नहीं कर रहा, कल आपका रिव्यूअर आप आ रहे हैं ना, आप मिस नहीं करना, मैं आपके इंतजार में हूं. अगर ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उस रिव्यूअर में सी का कमी है. और अगर इनकम टैक्स अगर अकाउंट्स का हेड 15 सितंबर के पहले फाइल करना चाहिए और 25 बहाने देता है क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब है उस अकाउंट्स हेड में या उस अकाउंटेंट में सी की कमी है. उसके पास नो हाउ नहीं है. सी मीन्स कंट्रोल. अगर आपको कंट्रोल करना है आउटकम्स को तो सी का मतलब है कंट्रोल. यू आर इन अ पोजिशन टू क्रिएट द आउटकम जो आपको चाहिए. सी का मतलब है कंट्रोल करना, चीजों को कंट्रोल करना, सिचुएशंस को कंट्रोल करना. सी रहेगा तो हर सिचुएशन को तुम कंट्रोल कर पाओगे. और नहीं तो क्राइसिस होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा. यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कंट्रोल. सी मीन्स एक्सपेंशन. आपका कंपनी का अगर एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कंटिन्यूस सी का डेवलपमेंट हो रहा है. एंड बिकॉज आपका कंटिन्यूस सी का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका कंपनी का, आपका डिवीजन का, आपका डिपार्टमेंट का, आपकी जिंदगी का विस्तार हो रहा है. सी मीन्स कंटिन्यूस अचीवमेंट्स. कंटिन्यूस अचीवमेंट्स. और हर फील्ड में आप अचीव कर सकते हैं. आप जब सुबह उठते हैं तो आपको हेल्थ का अचीवमेंट चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स का अचीवमेंट चाहिए, आपको बिजनेस में अचीवमेंट चाहिए, आपके बच्चे एकदम बेहतरीन कॉलेज स्कूल में वर्ल्ड में जावे वो अचीवमेंट चाहिए. दीज आर ऑल अचीवमेंट. सी मीन्स कंटिन्यूअस अचीवमेंट्स. सी मीन्स हैप्पीनेस. अब देखो, जब जब तुमने अपना सी को जहां जहां पर भी पिछले कई सालों में डेवलप किया, तुम हैप्पी हुए. जैसे मिसाल के तौर पे 1989 में जब मैं प्रमोद पालेकर के पास जाके पब्लिक स्पीकिंग सीखा तो आई वॉज वेरी हैप्पी. उसके बाद मैं किशोर फड़के साहब के पास जाके रैशनल इमोटिव बिहेवियर सीखा तो मैं बहुत हैप्पी हुआ. उसके बाद मैं अनिल कुमार से MDP सीखा, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैं बहुत हैप्पी हुआ. जब मैं सेल्स का मोटिवेशनल सेल्स कोर्स अपरेश आचार्य से सीखा, आई वॉज वेरी हैप्पी.
जब मैंने जाके मिल्ट कोर्स किया प्रेस से, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई डेवलप पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी, मेमोरी टेक्निक्स और बाकी बहुत सारी क्वालिटियां मेरे में जब डेवलप हुई, आई वॉज वेरी हैप्पी. When I did a whole lot of reading of 400 books of Zig Ziglar, Brian Tracy, and जब मैंने बड़े बड़े महान गुरुओं की किताबें पढ़ी, 400 किताबें सेल्स के ऊपर, 1250 सीडी जब मैंने देखे और हजारों सीडीज मैंने देखे, और जोएल बार्कर का मैंने हर सीडी को देखा, हर बुक को मैंने पढ़ा, और डैन सलीवान का हर बुक को पढ़ा, हर सीडी को मैंने देखा, और दुनिया की बेहतरीन इंसानों के पास जाके मैंने अपना डेवलपमेंट के लिए अपने आप को निछावर जब किया. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज सी मीन्स हैप्पीनेस. इसका मतलब है कि आप लाइफ में हमेशा तब हैप्पी हुए जब आपने सी पे काम किया. और हमेशा जब आपको ये अफसोस होता है कि मैं ये कर क्यों नहीं पा रहा हूं, कर क्यों नहीं पा रहा हूं, अरे कर क्यों नहीं पा रहा हूं, एक ही रीजन है. क्या रीजन है? सी का ही प्रॉब्लम है. सी का ही प्रॉब्लम है. या तो आपका सी का प्रॉब्लम है, या आपके आजू बाजू में सी वाले घूम नहीं रहे हैं, और अगर घूम रहे हैं तो आप दोनों मिलके एक दूसरे के सी के साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए रिजल्ट पैदा नहीं हो रहा है. एंड सी देयरफॉर मीन्स हैप्पीनेस. हमेशा जब मैंने अपने सी पे काम किया, एंड 99.99% लोग सी पे काम नहीं कर रहे हैं, रोज के मारामारी, सुबह उठते हैं, भाग रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं, और उनको सेम रिजल्ट मिल रहा है. एक सेल्समैन जो सुबह उठ के जाता है और रोज खाली आता है, उसकी खुशी, उसको जीरो हैप्पीनेस है, बट उसका हैप्पीनेस का, अनहैप्पीनेस का रीजन भी है कि उसमें सी नहीं है, और उसने सी के ऊपर काम करने का प्रयास नहीं किया. सी मीन्स कंटिन्यूअस ग्रोथ. Why is Amitabh continuously growing? Why is Sidhu, Navjot Singh Sidhu growing? Why is A.R. Rahman continuously growing? Why? उसने एक फील्ड चुना, मैंने एक फील्ड चुना, तूने एक फील्ड चुना, पीवी सिंधु ने एक फील्ड चुना, धोनी ने एक फील्ड चुना, विश्वनाथन आनंद ने एक फील्ड चुना, मोदी ने एक फील्ड चुना, राहुल ने भी चुना. लेकिन राहुल और मोदी में सी का ही प्रॉब्लम है. इट्स अ कंटिन्यूअस सी प्रॉब्लम. एंड देयरफॉर कोई कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और कोई ग्रो नहीं कर रहा है. सी का मतलब है एकदम बिंदास, फियरलेस. मतलब वो एक्सपेंड करने के टाइम पे डर नहीं रहा है, वो नया टेरिटरी में जाने में नहीं डर रहा है, वो नई चीजें करने में नहीं डर रहा, क्योंकि उसके कंटिन्यूस सी डेवलपमेंट की वजह से, बिकॉज सी डेवलप सी प्रोवोक्स सी पुशेस सी. आप में सी होगा, और आप अगर सी का मल्टीप्लीकेशन में है तो नए नए सी का डेवलपमेंट होगा, और नए नए सी की वजह से नए नए अचीवमेंट होगा, और हमेशा देयरफॉर आप फियरलेस रहेंगे. आप हमेशा फियरलेस रहेंगे. सी मीन्स कनेक्शंस. हर बेहतरीन इंसान, अगर तुझ में सी है, यू विल अट्रैक्ट द बेस्ट सीज. तुझ में सी नहीं है, घटिया लोग तेरे आजू बाजू में घूमेंगे. और तुझ में सी है, तू जब दूसरों के पास जाएगा जिसमें सी है, वो अप्रिशिएट करेंगे, वो कोलैबोरेट करेंगे तेरे साथ. लेकिन तुझ में सी नहीं है, मुझ में सी नहीं है, और विक्रम में सी है, और मैं विक्रम तेरे पास आया, और पराग भाई के पास सी है, और मेरे में सी नहीं, और मैं पराग भाई के पास गया, मैं घनश्याम भाई के पास गया, उनमें सी है और मुझ में सी नहीं है, मेरे को खड़ा नहीं करेंगे, और जैसे मेरा सी देखा वो खड़ा करेंगे, और कोलैबोरेशन होगा. गेम पूरा सी का ही है माय डियर फ्रेंड्स. गेम तुम्हारा कनेक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, राइट कनेक्शन तो गधे के साथ भी रह सकता है. द राइट कनेक्शंस अगर सबके साथ रखना है, एंड द कनेक्शंस जो रिजल्ट देता है, वो कनेक्शन. दुनिया का हर आदमी के साथ मैं कनेक्शन नहीं रखना चाहता हूं. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रोथ ओरिएंटेड आदमी के साथ ही हमारा कोर वैल्यू नंबर 6,
Smart Tiger Entrepreneur Parivar is a relationship for life with growth and transformation oriented individuals only. जो ग्रो करना चाहते हैं, मैं उसके साथ ही कनेक्शन रखना चाहता हूं. C means connections. C means continuous improvement. अगर C है तो हर डिपार्टमेंट में, अगर आपका मार्केटिंग मैनेजर के पास सचमुच में मार्केटिंग का C है तो वो डिपार्टमेंट का भयंकर विस्तार होगा. अगर आपका लॉजिस्टिक्स हेड्स के पास लॉजिस्टिक्स के बारे में सब कुछ सी है तो उस डिपार्टमेंट का भयंकर विस्तार होगा. सी मीन्स कंटिन्यूअस प्रोग्रेस. सी मीन्स you know what is the next battle, और वो नेक्स्ट बैटल के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बैटल के लिए कंटिन्यूअसली सी मल्टीप्लिकेशन की वजह से आप अगले बैटल के लिए रेडी है. जब जब इंसानों ने सी पे काम नहीं किया, अगला बैटल नहीं, प्रेजेंट बैटल में ही उसकी फटी पड़ी हुई है. वो आज का ही बैटल नहीं संभाल सकता, वो फ्यूचर का बैटल को क्या संभालेगा. वो आज ही अभी का लाइफ को नहीं हैंडल कर सकता. आज रिजल्ट पैदा नहीं कर पा रहा है वो आदमी, 2020 में क्या करेगा वो, क्या होगा 2021 में, क्या होगा उसका 2022 में. वो आज ही नहीं रिजल्ट पैदा कर रहा है और उस क्षेत्र में वो 10 साल से है. सी मीन्स उसका लाइफ बड़ा सिंपल है. वाइल अदर पीपल जिसका लाइफ सी नहीं है, लाइफ में सी नहीं है, उसका लाइफ बड़ा कॉम्प्लेक्स है. सिंपल का मतलब वो सिंपल कुर्ता पहना और सिंपल कपड़ा डाल के घूमना, वो वाली बात नहीं है. सिंपल का मतलब है एवरीथिंग इज सिंपल, फ्यूचर इज सिंपल, लाइफ इज सिंपल, बिजनेस इज सिंपल, एवरीथिंग इज सिंपल. वाइल दूसरों के लिए वो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड. कई धंधे वालों के लिए धंधा चलाना इज कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, फ्रस्ट्रेटिंग, एगनाइजिंग, पेनफुल. व्हाई? कई नौकरी करने वालों के लिए लाइफ इज वेरी पेनफुल. सी मीन्स यू हैव चोजन अ पाथ. सी का मतलब हर वो आदमी जो सी का मल्टीप्लिकेशन कर पा रहा है, उसने एक पाथ को चुना है. जैसे मैंने सेल्स के पाथ को चुना और कम्युनिकेशन के पाथ को चुना. किसी ने, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन का पाथ को चुना, अमिताभ ने एक्टिंग का पाथ को चुना, शबाना ने एक्टिंग का पाथ को चुना, किसी ने कोई और फील्ड को चुना. सी मीन्स कोई एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ को चुना. अगर तुमने एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ को चुना तो तुम और विश्वनाथन आनंद में क्या फर्क है. विश्वनाथन आनंद ने चेस का पाथ को चुना और चेस का हर पहलू को समझने का और उसकी गहराई में जाके लोग वर्ल्ड चैंपियन बनने का उसने कार्यक्रम सेट किया. तुझे भी जब तूने पाथ चुना, वेदर सेल्स था, वो एंटरप्रेन्योरशिप था, तो क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के सब पहलू को समझना, जानना, परखना. और जब तूने सी पे काम नहीं किया तो दुनिया में हर चीज के ऊपर ब्लेम डाला, जस्टिफाई किया, शेम किया. सी मीन्स बैंक बैलेंस. सी मीन्स यू आर नेवर रनिंग आउट ऑफ मनी. सी मीन्स यू हैव डन अ PhD ऑन योर सेल्फ. आपने अपने ऊपर PhD किया है. आप कंटिन्यूसली अपने आप को स्टडी कर रहे हैं. आपके चाल ढाल, विचार, सोच, बैठना, उठना, देखना, बोलना, कपड़े, आप सब पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. आपका PhD चालू है खुद पे. यू आर स्टडीइंग योरसेल्फ. आप लगातार आपको स्टडी कर रहे हैं. सी का मतलब है कि आप 30% आपकी कमाई अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लगा रहे हैं. 30% of the money you're reinvesting on yourself for developing multiple C's. C का मतलब है you are numero uno, you are number one, you are the first, the best and the fastest. Why is A.R. Rahman the first, the best and the fastest?
बिकॉज ही इज वर्कड ऑन हिज सी. उसने जो चुना है. सो सी मीन्स यू आर नंबर 1, यू द फर्स्ट, बेस्ट एंड फास्टेस्ट, जहां पर भी हो. सी मीन्स you have a wonderful understanding of the past. जब मैं 50:1 का रेशियो में था और जब मैंने कई बुक्स पढ़े और जिग जिगलर को सुना, ब्रायन ट्रेसी को सुना, एल्फ्रेड टैक को सुना और जॉर्ज टैक को सुना, तो मेरे को समझ में आया 50:1 क्यों था. वो एक्चुअली 20:1 हो सकता था. और फिर ये बुकें पढ़े और ऑडियो सुने तो 20:1 हो गया. तब फिर और समझ में आया कि 20:1 क्यों है. और जैसे जैसे मैंने सी का डेवलपमेंट किया, मेरा पास्ट को मैं छोड़ता गया, उसको रिपीट ना करता रहा. इसका मतलब है मेरा 50:1 1985 में, इन अक्टूबर 1985 नवंबर में मैं 20:1 पे आ चुका था. दिसंबर में मैं 15:1 पे आ चुका था. जैन ऑफ 1996 में मैं 10:1 पे आ चुका था. एंड बाय फेब आई हैड कम डाउन टू 2:1. एंड बाय मार्च आई वॉज 1:1. In 6 months, I mastered the art of selling and I changed my past. जिसमें सी है उसको पास्ट में अच्छा क्यों हुआ यह समझ में आता है, और बुरा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ कुछ चीजें वो उसको समझ में आता है. लेकिन जिसमें सी ही नहीं है उसका पास्ट उसको नहीं समझ में आ रहा. इट्स अ वंडरमेंट कि क्यों उसको रिजल्ट नहीं मिला. सी मीन्स यू हैव अ सेफ, सिक्योर एंड अ वेरी प्रेडिक्टेबल फ्यूचर. प्रेडिक्टेबल मीन्स आप अपना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे. उस फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया हुआ फ्यूचर के लिए जो तैयारी लगती है आप वो करेंगे, क्योंकि आप सी का मल्टीप्लिकेशन में कई जमाने से है. एंड देयरफॉर आपको फ्यूचर से कोई डर नहीं है. कोई भी गवर्नमेंट आवे, मैंने हमेशा 35 साल में कहा, कोई भी गवर्नमेंट आवे, अच्छा बॉस आवे, बुरा बॉस आवे, खड़ूस बॉस आवे, ये आवे, कोई भी टाइप का बॉस आवे, क्या भी सिचुएशन होवे, मुझे तो जीतना है. और उस हाल में, हर हाल में जीतने के लिए अगर मैं सी पे ध्यान दिया उस हाल के लिए, तो मुझे किस बात का डर. सी का मतलब है यू विल कॉन्स्टेंटली चेंज द गेम ऑफ योर बिजनेस. आप बिजनेस में यू विल बिकम द गेम चेंजर. आपके इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्री के बादशाह बनेंगे. यू विल बी अबाउ कंपटीशन एंड द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कुछ भी हो जावे, इंडस्ट्री में 3% ग्रोथ हो रहा है तो तुम्हारा 15% ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज यू आर अबाउ द इंडस्ट्री एंड यू आर अबाउ कंपटीशन. आपका कंपटीशन का हालत खराब है लेकिन आपका हालत खराब नहीं है. बिकॉज ऑफ सी यू आर अबाउ द कंपटीशन एंड द इंडस्ट्री. लेकिन जो सी डेवलप नहीं कर रहा हो, क्या बोला, हमारा इंडस्ट्री में तो आजकल डाउन चल रहा है, हम तो डायमंड में हैं, हम तो ऑटोमोबाइल में हैं, हम तो इसमें हैं, हम तो उसमें हैं. तो जो इंडस्ट्री में हो रहा अगर तेरे ऊपर भी लागू होना है तो इससे एक चीज समझ में जरूर आता है, या समझ लो आज कि तेरा सी में कमी होने की वजह से तू इंडस्ट्री का बहाना ले रहा है. And C means you will always be new, different and better. आप नया हो जाएंगे, हमेशा डिफरेंट रहेंगे और बेटर होते रहेंगे. And C means you are very striking. आप जहां पर भी जाएंगे आप स्ट्राइक करेंगे. You are absolutely powerful and invincible. Invincible का मतलब है you are unbeatable, unshakable, impregnable. आपको आसानी से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी इतनी सी है ना कि मार्केट और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी गवर्नमेंट आपको हिला नहीं सकती. सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस आपको हिला नहीं सकती. आपका अपाइज बनना भी आपको हिला नहीं सकता. और अगर आप अपाइज है और आपने सी पे काम किया, क्योंकि अपाइज लोग तो बहुत जल्दी सी पे काम करते, ये जो अपाइज नहीं है उनका प्रॉब्लम है.
C means everything becomes bigger, better throughout life. C means you know what action to take tomorrow. यूनियन हो गया फैक्ट्री में, आप आराम से रात को सो रहे हैं, बिकॉज कल सुबह यूनियन लीडर के साथ कौन सा 3 डायलॉग मारने से उसकी फटेगी तेरे को मालूम है, क्योंकि यूनियन लीडर को हैंडल करने का एक सी, एक महान सी होता है, और तुझे नहीं आती है तो तू रात भर तू घबराएगा. यू डोंट नो कल क्या बोलूं उस यूनियन लीडर के साथ. एंड देन जब तेरे पास सी नहीं है तो फिर वो डिमांड करेगा, वो डिमांड तेरे को पैंट उतार के देना पड़ेगा. सी मीन्स यू आर फॉर एवर अलाइव. आप जिंदा है, आपका उम्र नहीं हो रहा है. और आप बोल रहे हैं, जैसा मैं 54 में हूं, मैं हमेशा अभी आजकल मेरे को लगता है मैंने तो अभी अंगड़ाई भी नहीं लिया है, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है. एंड इन द नेक्स्ट 30 years आई एम गोइंग टू डू समथिंग रियली बिग विच विल बी कंप्लीटली नॉट व्हाट आई डिड फॉर द लास्ट 30 years. और उस चीज को पक्का करने के लिए कल 2 दिन मैं एमबी वैली में अकेला बैठा हूं. BWY डे. यू नो व्हाट इज BWY डे? बी विथ योरसेल्फ. कल और परसों मैं एमबी वैली में अकेला बैठा हूं. जब मैं आऊंगा मैं वो नायर नहीं रहूंगा, ये बात पक्का है. यही तो हमने सिखाया है आपको. यू आर फॉर एवर अलाइव, यू आर यूथफुल, एजलेस एंड टाइमलेस. उम्र आपको टच नहीं कर रहा. आपकी बेटियां बड़े हो गए, बेटा बड़ा हो गया, उसका शादी हो गया, यू बिकम अ ग्रैंडफादर, बट यू आर स्टिल अ छोकरा एट हार्ट एंड बॉडी. एंड दैट इज व्हाट सी इज ऑल अबाउट. सी रहता है ना, आदमी जवान रहता है. जिसमें सी नहीं है ना, जमाने की मार, जिंदगी की ठोकर, धंधे की मारा मारी, बीवी का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, आदमी को साले 40 में ही उसका जूस वारंटी गारंटी खलास कर देता है.